everyone, so welcome back again to another lecture in the lecture series which we have started for the mains paper in the MP Judiciary. So today's topic for our lecture is right to privacy in India. Right to privacy क्या होता है, right to privacy हमारे पास है भी कि नहीं है. All of us know that right to privacy is now been recognized as an implicit fundamental right under Article 21 of the Constitution by the leading case of K.S. Puttaswamy, Justice Retired versus Union of India, also known as the Aadhaar case. But in case an essay comes where you have to write about right to privacy in India, how the right to privacy has evolved and कैसे कैसे ये धीरे धीरे आया है over the years, अगर आपको लिखने के लिए आ गया तो we have this lecture in front of us through which we will be study in a guided manner as to how we have to approach that essay and write about this right, as to how it has evolved in India and what it actually means, what is the international perception about right to privacy. All that will be covered in this lecture. Now, things to be discussed are, first of all, we'll be briefly discussing as to what right to privacy is. Right to privacy का मतलब क्या होता है, ठीक है. Secondly, we'll be talking about from the second point we will be talking about the evolution of right to privacy in India. कैसे आया है, initially did we have a right to privacy, और फिर later on what was the whole instances what the Supreme Court took, whole decisions which the Supreme Court took in different cases, and how it has over the years resulted into a fundamental right. तो उसके लिए हम केसेस पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टडिंग MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र. सेकेंडली विल बी टॉकिंग अबाउट खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. Thirdly, we'll be speaking of Govind versus State of Madhya Pradesh, which is important for your pre-exams also, and it might be asked in your mains paper also. तो pre में भी आ सकता है, mains में भी आ सकता है, because it deals with the state of Madhya Pradesh. And fourthly, the main case which was decided on August 2017, which is K.S. Puttaswamy, Justice Retired versus Union of India, which is known as the Aadhaar judgment, one of the longest judgment of the Supreme Court ever in the history of India. यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगाई है which is of Professor Cyrus. आपने अलीगढ़ अगर मूवी देखी होगी तो you might have seen कि how beautifully Manoj Vajpayee here has portrayed the character of Professor Cyrus, who was a Marathi scholar who was teaching in Aligarh Muslim University. तो क्या हुआ, right to privacy is so personal and it is so near to you that in case it is violated or infringed by the state, it can cause so much damage that it can lead you to commit suicide. तो यही इन प्रोफेसर के साथ हुआ. The moment it came out that he was a homosexual और लोगों को पता लगा कि he is a homosexual, तो इनका जो था लाइसेंस वो कैंसिल हो गया, को AMU से डीबार कर दिया गया, and out of depression and everything क्या हुआ कि he was ultimately forced to commit suicide. So that is what the implication of infringement of right to privacy can lead to. This is just one example जहाँ पर ऐसा हुआ. There are a lot of number of examples जहाँ पर ऐसा होता हुआ आ रहा है. किसी के फीडिंग हैबिट्स के ऊपर किसी ने बीफ खा लिया तो उसकी लिंचिंग हो गई. ऑल दिस थिंग्स, किसी के मैट्रिमोनियल चॉइसेस के ऊपर अगर बात आई तो राइट टू प्राइवेसी यही बोलता है कि द इंडिविजुअल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द स्टेट. जो उसकी पर्सनल चॉइसेस हैं, वो उसकी अपनी खुद की चॉइसेस हैं, वो बहुत ही उसके नियर हैं, तो उनका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए. ही शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़, फ्रॉम द स्टेट, इवन टू द मैटर ऑफ उसको अपने नेबर्स से भी इतना प्राइवेट रहने की एक फ्रीडम है कि वो अपने घर में जो करता है, इट शुड नॉट बी disclosed out or talked about in the open by other people. So that is what is the basic premise of this whole right to privacy is. Now coming to the next slide. Right to privacy क्या है? It is an element of various legal traditions to restrain governmental and private actions that threaten the privacy of individuals. क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट? इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ वेरियस लीगल ट्रेडिशंस. लॉ के ट्रेडिशंस के अंदर ओवर द ईयर्स ये चलता हुआ आ रहा है. टू रिस्ट्रेन, क्या रोक रहे हैं, गवर्नमेंटल और प्राइवेट एक्शंस को. गवर्नमेंट के एक्शंस यानी कि स्टेट के एक्शंस को और प्राइवेट एक्शंस को हम रोक रहे हैं. दैट थ्रेटन द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स. प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो चीज़ उनके प्राइवेट मैटर्स हैं, उनको अगर थ्रेटन करती है कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एक्शंस या किसी भी तरह की चीज़ जो फॉरेन है, वो आपके पर्सनल स्पेस को वायलेट कर रही है, तो दैट इज़ what is to be protected by the right of privacy. Over 150 national constitutions mention the right to privacy. तो over 150 से भी ज़्यादा जो constitutions है different countries के, वो right to privacy guarantee करते हैं. Now the Universal Declaration of Human Rights under Article 12, जो Universal Declaration है Human Rights का,
आर्टिकल 12 में इम्प्लिसिटली बोलता है नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी। क्या कह रहा है? आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विदाउट अनगाइडेड या अनरीजनेबल, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, जो है प्राइवेसी किसी की वायलेट नहीं होगी, फैमिली, होम और कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ पर वो रहता है, जो उसका घर है, नॉट टू अटैक अपॉन हिज ऑनर या रेपुटेशन, या फिर एनी मैटर्स ऑफ हिज ऑनर या रेपुटेशन, ऑल दीज थिंग्स शैल बी प्रोटेक्टेड बाय द राइट ऑफ प्राइवेसी। Everyone shall have the right to protection of law against such interference or attacks. तो implicitly Article 12, however, it does not talk about right to privacy in explicit terms, but implicitly Article 12 में ये दिया हुआ है कि right जो privacy है वो बहुत ही ज़्यादा एक पर्सनल स्पेस है, आप उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। कोई भी फॉरेन अगर इन्फ्रिंजमेंट उससे आती है तो द इंडिविजुअल शैल बी एट the individual shall have the right to protect it at any cost. Now we take another example of Edward Snowden. Most of us know who Edward Snowden is. So basically, for those of you who don't know, he is basically a computer intelligence consultant जो NSA के अंदर और CIA के अंदर एम्प्लॉय हुए थे। तो इन्होंने क्या देखा अपने काम के दौरान पे कि देयर वर सर्टेन प्रोग्राम्स विच वर अंडर द बराक ओबामा गवर्नमेंट जो थी, उसके अंदर क्या कहते हैं, दे वर कैरिंग आउट सर्वेलेंस प्रोग्राम्स। सर्वेलेंस प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही थी, कॉमन मासेस के ऊपर नज़र रखी जा रही थी, उनका जो प्राइवेसी थी उनको वायलेट किया जा रहा था, उनके पर्सनल स्पेस के अंदर घुसा जा रहा था, उनकी वो जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं लीक हो रही थी। सो ही वॉज फोर्स टू रीलोकेट टू अ डिफरेंट कंट्री। इनको देश से ही निकाल दिया, इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए कि ये देशद्रोही हैं या जो भी हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ही हैड टू फ्ली हिज कंट्री। ये सब चीज़ें हो जाती है विसल ब्लोअर्स के साथ। तो दैट इज़ अगेन वन एस्पेक्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच कैन बी फर्दर इम्प्लोर्ड इनटू। However, we're talking about right to privacy in India. So coming to the first case, which is MP Sharma versus Satish Chandra in 1954. So this was an 8 judges Supreme Court bench. इसमें अंदर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ फैक्ट्स क्या थे कि दालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ था, उसके अंदर क्या हुआ था कि उनके ऊपर एक चार्ज था कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ, दालमिया ग्रुप के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने इजी वर्ड्स में वारंट्स इशू कर दिए सर्च एंड सीजर के अंदर। क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इशूड वारंट्स एंड सर्चेज वर consequently conducted. Before the Supreme Court, constitutional validity of the searches was challenged on the ground that they violated their fundamental rights under Article 19(1)(f) and 23 protection against self-incrimination. तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 19(1)(3) और आर्टिकल 23 के अंदर जो हैं ये वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम है, राइट टू प्राइवेसी की वायलेटिव हैं ये। तो 8 जजेस बेंच ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ड्राफ्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इंटेंड टू सब्जेक्ट द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर टू अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। उन्होंने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं भी ऐसी बात नहीं बोलता कि वी हैव बीन गिवन अ राइट टू प्राइवेसी। उन्होंने फर्दर बोला कि देयर इज़ अ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द 4th अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है कि एक राइट टू प्राइवेसी दे गारंटी करते हैं, जो राइट टू प्राइवेसी है वो गारंटी होता है। दे ओपाइंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड लैंग्वेज सिमिलर टू दैट ऑफ द 4th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाउंड नो जस्टिफिकेशन टू इम्पोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। तो इस केस में डिसाइड हुआ कि देयर इज़ नो राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया। द सेकेंड केस विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ of 1962, is that of Khadak Singh versus State of Uttar Pradesh. This case has been more often than not considered to be very confused kind of a case, क्योंकि इसके अंदर दो ओपिनियन अराइज हुए और वो आपस में कन्फ्लिक्टिंग भी थे। एक जगह पर कोर्ट ने बोला कि येस वी डू हैव अ राइट टू प्राइवेसी, वी माइट हैव अ राइट टू प्राइवेसी। द सेकेंड पार्ट सेड कि राइट टू प्राइवेसी है ही नहीं। तो अपने आप में ही जो था एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा था केस के अंदर। तो फैक्ट ऑफ दिस केस वाज खड़क सिंह बंदा था, उसको आर्म्ड रॉबरी से चार्ज कर दिया गया, बट लेटर ऑन ही वाज रिलीज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। हिस्ट्री शीट खोल दी गई उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके खिलाफ। तो उसके ऊपर क्या हुआ कि एक हिस्ट्री डायरी खोल के उसके ऊपर नज़र रखने लगे, उसके ऊपर सर्वेलेंस रखने लगे, विच इंक्लूडेड द पावर्स ऑफ डोमिसिलरी विजिट्स फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो ये सर हिस्ट्री शीट के अंदर क्या था कि जो भी ऐसा कोई बंदा जिसके ऊपर शक होगा उसके हम डोमिसिलरी विजिट्स कर सकते हैं, यानी कि उसके घर पे जा सकते हैं, उसको बार बार देख सकते हैं वो कहाँ पर जा रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज कर रहा है। तो दैट इज़ व्हाट द पुलिस डिड।
पुलिस वुड ऑफन विजिट सिंग्स हाउस एट ऑड आवर्स, रात को जाने लगी, waking him up when he was sleeping. The petitioner argued that these regulations were in violation of his right to life with dignity under Article 21 of the Constitution. तो उन्होंने जो सिंह जो था, खड़क सिंह था, उसने ये पिटिशन डाल दी कि ये मेरा आर्टिकल 21 को वायलेट करते हैं, और उसके अंदर ये भी कह दिया कि ये मेरा राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन है. तो 6 जजेस बेंच ने मेजॉरिटी में क्या कहा कि राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज़ वायलेटेड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट हुआ है, बट राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. माइनॉरिटी जजमेंट सुब्बा राव जस्टिस ने दी थी फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, हिंटेड ऑन अ पॉसिबिलिटी ऑफ राइट ऑफ प्राइवेसी. तो हाउएवर मेजॉरिटी जजमेंट ने फिर इसमें डिसाइड कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी हमारा नहीं है, बट द सीड्स ऑफ दैट वी माइट हैव राइट टू प्राइवेसी was first of all started in this case only. Now coming to, there were different benches of the various high courts which have decided as to we do have a right to privacy, जिसमें से गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ देम. तो 3 जजेस बेंच तो जी हाई कोर्ट की, उन्होंने क्या बोला, माइंडफुल ऑफ इट्स इनएबिलिटी, इनको पता था कि हम ओवर रूल तो कर नहीं सकते जजमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लार्जर बेंच ने दी है, skirted out around an inconsistency by assuming that the right to privacy was protected under the constitution, relying on the first part of the खड़क सिंह judgment. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द खड़क सिंह जजमेंट को उन्होंने लिया, जहाँ पर उन्होंने हिंट करा था कि वी माइट हैव राइट टू प्राइवेसी, तो उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने जजमेंट दी, विच वॉज लेटर ऑन फॉलोड बाय डिफरेंट कोर्ट्स, जिन्होंने अलग अलग मैटर्स के अंदर जजमेंट गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को फॉलो करके दी कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज़ प्राइवेट एंड दिस शुड बी प्रोटेक्टेड. Many smaller benches followed suit building on these principles to articulate a fundamental right of privacy in the context of medical privacy, matrimonial, किससे शादी करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, all these things are very personal. Reputational privacy, privacy of sexual orientation, कोई बंदा homosexual है, heterosexual है, उससे स्टेट को क्या मतलब, कोई बंदा क्या खा रहा है. तो all these cases were again they cited the गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और उसके बाद उन्होंने right to privacy का जजमेंट दिया. Coming to the last case, which is the most important case, which is known as आधार जजमेंट. तो इसमें ये केस का नाम है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो द डेट इज इम्पॉर्टेंट विच केम आउट ऑन August 24, 2017. आधार जजमेंट. ही इज हियर द पिक्चर विच इज गिवन हियर. ही इज द रिटायर्ड जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, जिन्होंने जो पिटिशनर थे इस केस के अंदर, उन्होंने क्या करा, इन्होंने आधार जो हमारी जो आधार स्कीम थी UDIDAI की, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्कीम थी, उसको चैलेंज किया कि दिस इज़ वायलेटिव ऑफ योर प्राइवेट मैटर्स, जो आपकी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपका फिंगरप्रिंट स्कैन लेते हैं, आइरिस स्कैन होती है, आपका एड्रेस लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, ऑल दीज डेटा विच इज़ वेरी पर्सनल टू यू. अगर कहीं ना कहीं ये शेयर हो गया तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें अराइज हो सकती हैं, किसी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चला गया, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्राइवेट टू मी. तो आधार इज़ वायलेटिव ऑफ योर राइट टू प्राइवेसी. तो इस केस में भी जो आर्ग्यूमेंट बनी थी, द एडवोकेट जनरल विच वॉज लीडिंग द केस, विच वॉज फाइटिंग द केस फॉर द गवर्नमेंट, ने क्या बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड विद इन इट द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी. अब इन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट किस पे बिल्ड करी, जो फर्स्ट 2 केसेस हमने डिस्कस करे. फर्स्ट ऑफ ऑल द MP शर्मा वर्सेस स्टेट सतीश चंद्रा, एंड सेकेंडली द खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इन दोनों केसेस के ऊपर उन्होंने बोला कि इन दोनों केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज राइट टू प्राइवेसी. ठीक है, बट 9 जज बेंच ने लेटर ऑन यूनानिमसली डिसाइड करते करते इसके ऊपर अराइज हुआ है कि द राइट ऑफ प्राइवेसी जो है वो आपका आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट है. तो यहाँ पर लिखा है द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. There are various important things which are need to be taken down from this judgment. First of all, right to privacy is now a fundamental right. First point कहता है not need to be separately articulated but can be derived from articles 14, 19 and 21 of the constitution. तो ये 3 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, विच इज़ 14, 19 एंड 21 में से आपका राइट टू प्राइवेसी निकल के आता है इम्प्लिसिटली. ये ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी है. राइट टू प्राइवेसी क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द स्टेट इन देयर होम, ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, चॉइस ऑफ पार्टनर्स, फूड हैबिट्स. तो प्राइवेसी का मतलब क्या है कि स्क्रूटनी ऑफ द स्टेट से, स्टेट की स्क्रूटनी से इंसान को बचाएगा अपने घर में, वो क्या कर रहा है, उसके क्या मूवमेंट्स हैं, कहाँ जा रहा है, उसकी वो पर्सनल चॉइस है, उसकी रिप्रोडक्टिव हैबिट्स जो है, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो हैं,
जो पार्टनर्स की चॉइसेस हैं, क्या खाता है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी पर्सनल, तो ये सब चीज़ें उसकी प्राइवेट अफेयर्स हैं, तो दैट ऑल विल बी प्रोटेक्टेड अंडर द राइट ऑफ प्राइवेसी. Any action by the state that results in infringement of the right to privacy is subject to judicial review. थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई स्टेट एक्शन उसके ऊपर हो जाता है जो उसका राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, तो दैट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. उसके ऊपर बंदा केस कर सकता है कि माई राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन वायलेटेड, प्लीज़ इसके ऊपर आप डिसाइड कीजिए, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा उस एक्शन का कि स्टेट ने जो एक्शन लिया क्या वो सही था, क्या वो गलत था, तो ऑल दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. अगर अब देखा जाए तो कई बार ऐसे केस अराइज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट इंपॉर्टेंस की बात करिए या स्ट्रेटेजिक वैल्यू की कोई चीज़ें हैं वेयर अगर राइट टू प्राइवेसी आप बचाने पे आ गए तो इट माइट रिजल्ट इन टू मोर हार्म दैन प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी. तो इन सच केसेस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको देखते हुए राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन अलाउड है. स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू प्राइवेसी टू प्रोटेक्ट लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, बट इट कैन ओनली डू सो बाय फॉलोइंग द 3-pronged टेस्ट. अभी क्या बोलते हैं कि 3 पॉइंटर्स का टेस्ट है, तो अगर वो फॉलो होगा तो ही आपका जो राइट टू प्राइवेसी है वो वायलेट हो सकता है. ये 3-pronged टेस्ट क्या है? Existence of a law that justifies encroachment on privacy. First of all, there should be a law that justifies encroachment on privacy. ऐसा कोई लॉ है जो बोलता है कि हाँ इस केस में या ऐसे केस में जो प्राइवेसी का अगर वायलेशन होगा वो जस्टिफाइड होगा, वो गलत नहीं होगा. सेकेंडली, a legitimate state aim or need that ensures that the nature of the content of this law falls within the zone of reasonableness and operates to guard against arbitrary state action. This is also important. क्या कहता है कि जो स्टेट का एम है जिस वजह से उस वो लॉ को एक्सरसाइज कर रही है, कौन से लॉ को, जो जस्टिफाई करता है इंक्रोचमेंट ऑन प्राइवेसी, वो जो लॉ को एक्सरसाइज कर रही है वो उस एम के लिए कर रही है विच इज़ रीजनेबल. कोई स्टेट का ऐसा एम है जो रीजनेबल है, आर्बिट्ररी नहीं है. किसी भी काम के लिए उस लॉ को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसी काम के लिए करेगी जो कहता है फॉल्स विद इन द जोन ऑफ रीजनेबलनेस and operates to guard against arbitrary state action. और thirdly, the means adopted by the state, जो means adopt करेगी एक्सरसाइज के लिए, उस लॉ को एक्सरसाइज करने के लिए, for that need should be proportional to the objects and needs sought to be fulfilled by the law. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसमें दिया हुआ है. क्या कहा है कि उतना ही आप उस लॉ को एक्सरसाइज करेंगे जितना कि रिक्वायर्ड है. ये नहीं कि आपको सिर्फ मेरा फ़ोन नंबर चाहिए था तो आपने मेरा एड्रेस भी ले लिया, आपने मेरे खाने के चॉइसेस भी ले लिए, सब कुछ ले लिया. अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए था तो आपने, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको मेरा फ़ोन नंबर चाहिए था तो आप मेरा फ़ोन नंबर ही लेंगे, उसके अलावा आप कुछ चीज़ में से नहीं ले सकते, विच इज़ वेरी प्राइवेट टू मी. तो ये आपका 3 पॉइंटर्स टेस्ट है. अब इसके बाद आते हैं कि कुछ अदर इंसिडेंटल इम्प्लीकेशंस हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ. अब आउटकम ऑफ द पुट्टास्वामी जजमेंट वाज कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी. तो होमोसेक्सुअलिटी को जो डीक्रिमिनलाइज करा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, तो इसके अंदर भी पुट्टास्वामी जजमेंट को साइड करा कि जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है किसी इंसान की, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी प्राइवेट एंड शुड बी प्रोटेक्टेड. तो 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया. अब कई स्टेट्स ने जो बैन ऑन बीफ था, बीफ के ऊपर लगा हुआ था बैन, क्योंकि उसके किसी ने बीफ खा लिया तो उसकी लिंचिंग हो गई, तो ऑल दोज इंसिडेंट्स वर इन प्लेस ऑल्सो. तो उसको बचाने के लिए सर्टन स्टेट्स के अंदर जो इम्पोज बीफ बैन था उसको भी हटा दिया. और थर्डली आपका अडल्ट्री. तो ऑल दीज थिंग्स आर विच केम आउट ऑफ द प्राइवेसी इशू ओनली. तो ये सब चीज़ें हैं विच माइट बी आस्क्ड इन योर एसे पेपर. तो जस्ट इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो एंड आस्क मी, और बाकी सारे प्रेजेंटेशन आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस. थैंक यू.